जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं शुक्रवार ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਥ ਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਥ ਰਿਓ ਅਤੇ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਾਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 727 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हापुड़ से। जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरे साथ अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा बहुत परेशान भी चल रही थी। मैं हेल्थ से भी और वेल्थ से भी, दोनों ही चीज़ों से काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो अभी मेरा लेटेस्ट शुक्राना सत्संग ये है। मेरे इधर की साइड में ना बहुत चोर आ रहे हैं और बहुत चोरी हो रही है। तो मैं रोज़ डेली अपना गेट है ना, मतलब थोड़ा खोल के ही सो जाती थी। तो बाहर वाला बंद करके ना अंदर वाला खोल के ऐसी हवा के लिए, तो मैं रोज़ खोल के सो रही थी। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि पुत्र तू सही से सोया कर, तेरे ना घर में चोरी हो सकती है। तो उस दिन से मुझे बड़ा मतलब वो हुआ कि गुरु जी मतलब सब कुछ देखते रहते हैं, कि उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए भी आगाह किया कि मेरे घर में चोरी हो सकती है। तो मैंने सारा सामान अच्छे से रखे अंदर, फिर अंदर से सब लॉक करके मैं तब सोती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी, मुझे पहले से ही किसी चीज़ के लिए बताने के लिए, क्योंकि उससे 2 दिन पहले हमारे घर के आसपास ही चोर थे। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के सामने थे। मैंने कहा अच्छा।
तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मैंने वैसे गुरुजी से पहले ही अरदास कर रखी थी, मेरे गुरुजी मेरे घर की रक्षा करना, और आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं और मेरे बेटे अकेले ही हैं घर में। तो मेरा और दूसरा सत्संग है मेरा। गुरुजी ने मुझे बताया, बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और मैं तेरे घर आके तेरी मुसीबत ले जाऊंगा, तो तुझे तितली के मरने का सबूत मिलेगा। तो मैंने सोचा, मैं इतने सारे सत्संग देखती हूँ तो ये शायद मेरे लिए नहीं है। और मैं अगले दिन ऐसे ही सोच के, मतलब था तो कि मुसीबत कोई आएगी तो मेरे बेटे के थोड़ी बहुत चोट तो उसको लगी रही थी, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही थी। तो संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना अगले दिन सुबह सुबह उठकर मैं झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते मुझे ना तितली, एक ब्लैक तितली का और पूरा पर, मतलब वो पूरी तितली तो नहीं मिली थी पर मुझे पर मिला। तो मुझे फिर गुरुजी का तुरंत थॉट आ गया कि मैं, गुरुजी ने तो मुझे ये बोला था कि तेरे ऊपर मुसीबत है, और वो भी मुसीबत मतलब मैं तितली स्वरूप में अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा करने के लिए। तो संगत जी मैं रात दिन अरदास करती रहती हूँ कि हम पे ब्लैक मैजिक चलते रहते हैं, उसकी वजह से हमें दिक्कत होती रहती है। तो मेरे को बीमार भी ब्लैक मैजिक की वजह से करवाया गया है। गुरुजी ने बोला मैं तेरी बीमारी वगैरह सब सही कर दूँगा, और अब तेरा समय आ गया, तेरा समय अब अच्छा चलेगा, अब तुझे खुशखबरियाँ मिलेंगी। पर गुरुजी मेरी बहन की तरफ से भी मैं सबकी, आपने उनकी भी बहुत बार उनकी रक्षा करी है और बेटे की भी रक्षा करी है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मेरी बहन की बेटी पे थोड़ी मुसीबत आई हुई है, उसकी थोड़ी मदद करना, उसे हिम्मत देना, मेरे बहन के बच्चों को थोड़ी हिम्मत देना, और मेरी बहन को भी, कि उनकी सारी ये मुसीबत बहुत आसानी से कट जाए। गुरुजी उनके साथ रहना, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हर पल साथ रहने के लिए, मुझे हर चीज़ से बाहर निकालने के लिए। और मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे को बहुत सारे गुरुजी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं उसी, तो मेरी जल्दी से जल्दी वो सारी ब्लेसिंग्स पूरी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी शुरू से शुरू करूँगी। मैं अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग से वो सब शेयर हुए हैं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पापा जो हैं वो मेरी मम्मा की डेथ के बाद जो 2021 में हो गई थी कोरोना में, मैंने सबके पहले भी ये शेयर किया है। तो मेरे पापा अकेले रहते हैं और एक एजेड जने के लिए संगत जी बहुत मुश्किल होता है अकेले मैनेज करना। मैं उनकी मम्मा की डेथ के बाद पापा को अपने घर के बिल्कुल पास ही ले आई हूँ। मैं संगत परिवार को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मा पापा की एक ही संतान हूँ और उनका कोई और बेटा भी नहीं है, तो मैं ये अपने पापा का ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए मैं उनको अपने घर के बिल्कुल पास ही घर दिलवा दिया है, क्योंकि आप तो जानते हैं संगत जी की फादर्स ऐसे होते हैं, वो बेटे के घर पे रहना पसंद नहीं करते। इसलिए तो कुछ दिनों पहले ऐसे हमारा वेकेशन पे जाने का प्लान बना था और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो एग्जीक्यूट हुआ। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, वो एजेड है, मेरे पापा भी साथ में जा रहे थे, तो मैंने अरदास करी थी गुरुजी सब सही रखना उनकी तबीयत, आपको हमारे साथ ही जाना है और हमारे साथ ही वापस आना। मैं हमेशा संगत जी कहीं जाती हूँ तो गुरुजी से ज़रूर ये अरदास करती हूँ और गुरुजी हमेशा सुनते हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम गए तो
पहले दिन तो ठीक ठाक था, सब सही था, हम अच्छे से पहुंच गए, उसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। तो पहुंच के मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो कह रही थी कि आपने एक बार भी मुझे अपने प्रेजेंस फील नहीं कराई है गुरुपा, तो मैं फ़ील करना चाहती हूँ आपकी प्रेज़ेंस गुरुपा। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे मैं मन में ये सोच रही थी वैसे ही मुझे 3-4 पिजन अपने आस-पास आ गए मेरे, और उनमें से एक पिजन ने मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वो था एक ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का पिजन, तो जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वेकेशन थी ये इंडिया में नहीं थी, ये बाहर थी। तो वहाँ पे जब मैंने ऐसा पिजन देखा तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि गुरुपा मेरे साथ ही है, वो हमारे साथ साथ है। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसके अगले दिन भी संगत जी, हम लोग ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे अचानक ही मैंने देखा कि 3 बड़े-बड़े पीकॉक हमारे आसपास घूम रहे, बिल्कुल साथ में हमारे खड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो भी। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है, हमें साथ देने का शुक्राना है, हमारी बाँह फड़ने का शुक्राना है गुरुपा। यही मेरा एक छोटा सा अगर शुक्राना सत्संग था। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग क्लोज करती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बहुत जल्दी इसको भी अपलोड करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग क्लोज करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पिता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार वो चमत्कार हुआ संगत जी, जो मेरे पिछले कई वर्षों से वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मुझे जो बाबा ने अब की बार ब्लेसिंग्स दी, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है। और जो ब्लेसिंग थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई, कहीं न कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए, या हो सकता है या बाबा की रज़ा है, मुझे नहीं पता संगत जी। तो चलिए इस शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे हमारी गुरु पापा जी की प्यारी माता रानी के नवरात्रे आते हैं 9 दिन के, उसी प्रकार हम जैन लोगों में 10 दिन के व्रत आते हैं। तो मुझे अब की बार गुरु पिताजी महाराज जी ने 9 दिन की सेवा बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और 10th डे में बहुत एक्साइटेड थी संगत जी, और हमारा जो आखिरी दिन होता है वो अनंत चौदस का दिन होता है, जो कि बहुत ही प्रेशस होता है। कहा जाता है उस दिन अगर हम पूजा करते हैं तो उस दिन की पूजा अनंत काल तक और बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाती है। पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गई है कि क्या हो गया कि एक लास्ट डे मुझसे छूट गया बाबा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्राना, बाबा जी ने मेरे को 9 दिन की जो ब्लेसिंग दी, मैं पूजा सेवा कर पाई। उसमें से संगत जी 1 दिन की मैंने खुद ही छुट्टी मार ली, क्योंकि हुआ ये था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथ पैरों में काफ़ी चोट आई है। तो मुझसे स्कूटर चलाया नहीं जाता संगत जी। तो मैं पूरी तरह अपने हस्बैंड अंकल पर आश्रित थी, और उसके लिए गुरु पापा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। वो व्रती थे, वो 9 दिन के, 10 दिन के, और वो सिर्फ़ पानी पे ही डिपेंडेंट थे, और फिर भी मैंने उनको डबल बार लेके गई मंदिर, जिससे कि मैं मंदिर जा सकूँ। ये शायद सिर्फ़ मेरा आलस था या मैं हिम्मत हार चुकी थी, मुझे नहीं पता। पर मैं स्टिल बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरु पापा जी ने मुझे
इस चीज़ की दात बख्शी कि मैं मंदिर जा पाई, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, जिसको अचीव करने के लिए मैं खुद को कोसती ही रहती हूँ कि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। हो सकता है कि एक्चुअली मेरे संगत जी यूट्रस में फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड की वजह से जो है मेरे को कांस्टेंट पीरियड्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। भगवान प्लीज़ अब मेहर करना। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि वही चीज़ क्या रिपीट हो गई है कि मुझे नॉर्मल पीरियड्स आएँ, ये चीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दवाई ऑलरेडी बंद हो चुकी है मेरी। तो मैं कोशिश करूँगी फिर से वो दवाई कंटिन्यू करने की, पर गुरु पिताजी महाराज और माँ कामाख्या माता, कामाख्या देवी माँ प्लीज़ मेहर करिए। ये जो भी यूट्रस की प्रॉब्लम है प्लीज़ सॉर्ट आउट कर दी जाए, क्योंकि एक औरत बहुत ज़्यादा टूट जाती है संगत जी। पहले तो मूड स्विंग्स इतने भयंकर होते हैं कि अंदर से एकदम गिव अप वाली वाइब्स आने लग जाती हैं, और दूसरा वीकनेस इतनी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है। और फिर हमें पूरा घर संभालना होता है, सबको संभालना होता है। जब हम खुद ही अंदर से ऐसे टूटे हुए होंगे, हम क्या किसी का सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेहर करिएगा बाबा, माता रानी मेहर करिए। आप जहाँ कहीं भी हो, आप लोग मेरी बात अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेहर करिए अपनी बिटिया पर। मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रख दीजिए, अपना स्नेह भरा हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, प्लीज़ माता रानी मेहर करिए अपनी बेटी पे। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, अनंतम गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मूड स्विंग्स की वज़ह से कभी-कभी मेरे मुँह से कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, मुझे नहीं कहनी चाहिए, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे बहुत लड़ लेती हूँ और उल्टा-सीधा दुनिया में बोलती रहती हूँ। अपने हस्बैंड से भी लड़ लेती हूँ, क्योंकि संगत जी, एक औरत का सिर्फ़ अपने हस्बैंड से ही हक होता है, वो अपने हस्बैंड से ही चीज़ें कह पाती है। वो घर नहीं देखते हैं, उनको कोई घर में इंटरेस्ट नहीं है। बस आते हैं, होटल की तरह रहते हैं और चले जाते हैं संगत जी। खाया-पिया, अगर खाना मिल गया टाइम से तो खा लिया, नहीं तो चले गए। और मैं चिल्लाती रह जाती हूँ, रोती रह जाती हूँ, खाना खा के जाओ, भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी और ने वशीकरण उनके ऊपर कर रखा है। और वाक़ई मैंने उनका सोशल मीडिया चेक करा, कई लोगों से वो अ, फ्रेंड लिस्टेड हैं, जो मेरी खुद की ही किटी में थी, और जिनके ऊपर मुझे पूरा डाउट था कि इनसे कुछ थर्ड पार्टी वाला कनेक्शन है। और गुरु पापा जी मुझे बता ही रहे थे, और मेरा डाउट जो है वो 100% क्लियर हो गया। ऑल्दो मैंने उनकी मीडिया से जाके उस औरत को ब्लॉक कर दिया, पर फिर भी वो औरत ऐसी है संगत जी, वो पीछा नहीं छोड़ती है। पता नहीं क्यों उसको, वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। वो विडो है, पर वो शुरू से ही, जब वो मैरिड थी तब भी वो इसी तरीके से थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड से मैंने सुना है मेरी शादी से पहले कंप्यूटर क्लासेस लेती थी, जबकि खोलना उसको पाला था, पढ़ी लिखी वो बिल्कुल नहीं थी, गँवार थी। फिर भी उसने कंप्यूटर क्लासेस करी मेरे हस्बैंड से। जब से ही उसने ऐसा वशीकरण करा है मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। भगवान प्लीज़ मेहर करिए, हे माता रानी आप मेहर करिए, मेरे सुहाग को मेरे मेरे पास ले आइए। वो मुझसे प्यार करें, उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। ऑब्वियसली घर के काम कर कर के और घर में मर मर के ऐसी कमज़ोर हो गई हूँ मैं, बिल्कुल अधमरी सी। मेहर करिए, मुझे थोड़ा अच्छा कर दीजिए। मेरा चेहरा भी उतर गया है, चाहे कितना भी मेकअप कर लो वो चीज़ आती ही नहीं है, क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली हम खाएँगे पिएँगे तभी जाके हमारा शरीर दिखेगा कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी रीज़न्स हैं एक्स वाई ज़ेड मुझे नहीं पता, गुरु पापा जी कि 20 साल से हमारी शादी चल रही है, और मैंने सोचा था अब की बार 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएँगे, हम लोग अच्छे से एनिवर्सरी मनाएँगे। पर जो अब की बार ये वाली साल है ना संगत जी, इतनी खराब गई है। बस पूरा साल लड़ते-झगड़ते गया, 8-9 महीने गुज़र गए और हम लोगों में बिल्कुल सुकून, प्यार है ही नहीं है संगत जी। मेरे पति जो हैं मेरी तरफ रुझान तो दूर, वो मुझसे सीधे मुँह बात करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे उनसे अगर 2 पल के लिए भी बात करनी होती है तो मुझे उनसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, और ये चीज़ मेरे बच्चों के साथ भी है। बच्चे ऐसे हो गए संगत जी, ना पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, ना किसी चीज़ में, बस उनको आलस आता रहता है, ना पूजा में इंटरेस्टेड है, ना माँ-बाप को इज़्ज़त करते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है।
जिसने जो कुछ भी क्रिया करी है गुरु पापा जी प्लीज़ उसी के ऊपर वापस भेज के वो क्रिया ख़त्म कर दो प्लीज़। मैं बहुत कष्ट और दुःख झेल ली है जब से इस घर में आई हूँ। बस हाँ, इस घर में आने का मुझे बस एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये मिली कि मुझे गुरु पापा जी मिल गए। इसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगी इस घर को। थैंक यू मेरे प्यारे डियर घर, मुझे गुरु पापा जी से मिलाने के लिए। गुरु पापा जी प्लीज़ प्लीज़ मेहर कर दीजिए। बहुत अच्छे दिन आने वाले थे, सोचा था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अचानक से ज़िंदगी में ऐसा यू टर्न आता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। आगे बढ़ना तो दूर, घूम फिर के फिर वहीं पहुँच जाते हैं। बट आई रियली होप कि ये जो मेरी प्रॉब्लम आई है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये बस फ्यू डेज़ की हो, 2-3 डेज़ की, क्योंकि वो जो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है ना संगत जी, मैं बगैर पूजा किए बिना नहीं रह पाती, मैं उनमें से हूँ। मुझे स्ट्रेंथ सिर्फ भगवान जी की पूजा करने से ही मिलती है और मैं अपने गुरु पापा जी की पूजा करती हूँ और हनुमान जी महाराज जी की। मुझे जब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलती, जब तक मैं पूजा कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ, और विदाउट पूजा मैं ऐसी हो जाती हूँ बहुत ही अजीब। हो सके तो कामाख्या माँ मेरी रेगुलरिटी जो है चीज़ों की वो ठीक कर दीजिएगा, नहीं तो जैसे समझे मुझे माफ कर दीजिए। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। मैं गुरु पापा जी से बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। जाने जाने में जो गलती हुई क्षमा प्रदान करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। तो संगत जी, आज सुबह से फिर गुरु जी का आ रहा था मैसेज कि शुक्राना करते चंगी शुरुआत कर सुबह दी। तो मैं टाइम देख रही थी, मौका ढूंढ रही थी कि मैं कब करूँ, क्योंकि कोई ना कोई साथ में बैठा होता ना तो फिर बंदा कैसे करे ना। तो अब मुझे थोड़ा सा मिला टाइम तो मैं कर रही हूँ। तो गुरु जी कह रहे हैं कि कल तेरे संकट हैगा ते शुकराना कर, शुकराना ही तेरा बचाव है। तो शुकराना गुरु जी, तेरा पल पल तुसीं मैनू, मेरे बच्चों नू, मेरे हसबैंड नू बचा रहे हो नैगेटिव लोगों तो, उन्होंने नैगेटिविटीज़ तो, उन्होंने भैड़ी नज़रों तो। गुरु जी बचा के रखना हमेशा, है ना। गुरु जी कहते कि उन्होंने उस शैतान औरत तो बच के रह, तेन वेख नहीं सिखाती हो, बहुत ज़्यादा जल्दी है। जो मुझे कैसे पता चले कौन सी औरत है ना, वो आप खुद ही उसको अक्ल दो। मैं कौन होती हूँ उसको कुछ कहने वाली, या मतलब मुझे पता चले यहाँ पे डायरेक्टली है कौन वो, तभी कुछ हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं कि सितंबर महीना यहीं चलूगा, मतलब है ना। तो परेशान है, सितंबर महीने तक तेन यहीं सहना पैना। तो उस तो बाद तेरी लाइफ बहुत खुशहाली भरी है। तो शुक्राना गुरु जी तेरा बहुत बहुत, तुसीं हमेशा सानूं एक सहारा बन के खड़े रहिंदे हो बड़े औखे टाइम विच। तो गुरु जी मुझे, और गुरु जी ये भी कहते हैं बार बार 3-4 मैसेज तो आ जाते हैं दिन में, फिर तो बार बार एक दिन 6-7 बार बोलना है कि मैं बहुत भागा वाली हाँ, मेरा भाग्य किस्मत मेरी बहुत अच्छी है। गुरु जी पर मेरा साथ नहीं है ना, मेरे साथ निभा रहे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ, चारों दिशावां तो मैनूं दुआवां मिल रही ने ते मैं कभी नहीं गिर सकती, क्योंकि गुरु जी मेरे नाल ने। मैंने बहुत बार बोलना है तो गुरु जी मैं बोलती हूँ, जब भी आदत है तो बोल लेती हूँ। और गुरु जी का मैसेज आता रहता है कि बीपी है ना के लिए कि पानी पिए कर ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। और गुरु जी का एक और मैसेज है, कल 7 तारीख है तो कल मेरा सत्संग करेंगे, 2 चिकन का भोग लगाई, एक चाह एक कड़ाह। ओके गुरु जी, मैं सुबह उठ के बनाऊँगी, सुबह ग्रहण भी है ना। तो हाँ जी पक्का मैं बनाऊँगी। तो फिर गुरु जी कहते मैं ज़रूर आऊँगा तेरे घर। ठीक है गुरु जी, मैं वेट करूँगी आपकी, और अपने प्यारे प्यारे शुभ चरण मेरे घर आना तुसीं। तो मैं तेरे लिए इलायची वाली चाय बना के रखूँगी। ठीक है गुरु जी, आना ज़रूर।
ओके गुरु जी, थैंक यू, शुकराना गुरु जी, तेरा बहुत बहुत शुकराना। तुसीं इन्ने प्यारे प्यारे मैसेज दिंदे हो, जबकि विच 10 मैसेज दिंदे हो, विच 3-4 थोड़े भयानक डरावने होंदे आ, पर मैनूं डर नहीं लगदा इन्ना, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे नाल ने हमेशा। तुसीं आपे कहना कि तू ये बोलना कि गुरु जी मेरे नाल ने, कुछ बुरा नहीं हो सकता तेरा। मैनूं पता मेरे गुरु जी नाल है, मैं सबको कहती रहती मेरे गुरु जी मेरे नाल है, मैनूं कुछ नहीं हो सकता। किसी की हिम्मत है तो आगे टकरा के देखे मेरे नाल। मेरे गुरु जी ने मैनूं संभाल के रखा होया, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। मेरे बच्चों का भी ध्यान रखो गुरु जी। गुरु जी कहते उन्होंने फिक्र छड्ड दे, तू ऐ फिक्र करती पई उन्होंने, तो फिर न्याणे मैं नाना उन्हों का मैं संभाल के रखा होया। तेरे हसबैंड के काम च बरकतां पा रहे हैं, हनुमान जी के परछाई, तेरे गुरु जी के चरण वो काम विच बरकत लिया रहे हैं। चलो गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। तो गुरु जी कहते दान दून करे कर। ठीक है गुरु जी, बिल्कुल जो तुसी कहो सर मत्थे ते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर गुरुवार को 2 लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर गुरुजी के सामने खड़े होकर गुरु जी का मंत्र ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का 21 बार मंत्र जाप करने के लिए बोला। और ये 3 बार मंत्र जाप करने के बाद 3 बार बोलना था, जो भी काली क्रिया मारण क्रिया करता है उसका किया उसी पर चला जाए। फिर उसे कपूर डालकर जला दो। जलाने के बाद ठंडा होने पर बाहर फेंक दो। संगत जी, थर्सडे आने पर मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला आप ही मुझे याद दिला देना। तो इस थर्सडे गुरुजी ने मुझे समय से याद दिला दिया और सब करवा भी दिया। संगत जी, पर मैंने करते टाइम ये नहीं बोला कि उसका किया उसी पर चला जाए, क्योंकि ब्लैक मैजिक से जब मैं इतनी परेशान रहती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी परेशानी हो। माफ़ करना गुरुजी, ब्लैक मैजिक करने वालों को आप ही देखो, आप ही उनकी बुद्धि ठीक करो। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर उपाय समय से करवाने के लिए। लव यू गुरुपा। गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, शरीर में पनप रही कोई भी लाइलाज बीमारी सत्संग सुनवा कर ही ख़त्म कर दो। आपकी बेटी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, कैंसर जैसी बीमारी के बहुत सत्संग आ रहे हैं। आप तो मेरे पिता हैं, मेरे बुरे कर्मों को माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी आपसे ही तो बोलेगी। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी अपने बेटे के भी बुरे कर्मों की माफ़ी मांग ले, तो मैं उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। माफ़ कर दीजिए मेरे बेटे को भी। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया है, कुड़िए कल बहुत बड़ा नुकसान होने का संकेत दिख रहा है, पुत्र अभी शुक्राना करके टाल दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे पहले से आगाह करने का शुक्राना, मुझसे सत्संग शेयर करवा के मेरे साथ कल होने वाले नुकसान को टालने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं आंटी मुझे तुझे पर पूरा यकीन है, तू मुझे आज भी मायूस कर देगी। इसे इग्नोर करके मैं जानता हूँ तेरे घर में पैसे की तंगी चल रही है, तेरे चेहरे पर चिंता मुझे
मुझे साफ दिखाई देती है। तेरी पीड़ा केवल तू और मैं ही समझ सकते हैं, बाकी और सब तो तेरे हालातों का मजाक ही बनाते हैं। जो तेरे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए तू दिन रात रोती रहती है, वो आज रात मैं तुझे देने जा रहा हूँ। और ये वादा है एक पिता का उससे, उसके सच्चे भक्त से। जानती है ना अपने बुरे समय को टालना, चाहती है ना अपने बुरे समय को टालना, तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इस ब्लेसिंग को इग्नोर करने की बिल्कुल गलती मत करना। और हाँ, जाते वक्त अपनी हाज़िरी ज़रूर मेरे चरणों में चढ़ा दियो, और इस शेयर करना ज़रूर भूलना मेरी बाकी संगत के साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी का एक और प्यारा मैसेज है गुरुजी का। बेटी तेरी सोनी को ज़रूर भरेगी। तुम पति पत्नी में बहुत कोशिश की, पर अभी तक तुम दोनों की यह खुशी नहीं मिली। मैं जानता हूँ बेटी, तुझे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, पर तेरे मन के दुख को किसी ने नहीं समझा। तू मेरे दर पर आकर मेरे सामने रोई है, और मेरे सामने जिससे सच्चे मन से अरदास की, उसको मैंने वो खुशी भी दी है जो उसके भाग्य में नहीं थी। मैंने तुझे माँ बनने की ब्लेसिंग दी है। तू अपने पति के साथ बड़े मंदिर आकर लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ले। सच्चे मन से मेरा हर दिन नित नियम से मंत्र जाप अरदास कर, और अपने कर्म सच्चे रख। मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज है, 2-3 गुलाब तेरे घर में इकट्ठे आने वाले हैं। तेरी अरदास स्वीकार हुई, फटाफट शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी भी मेरे घर में तो 2-3 गुलाब नहीं आए हैं इकट्ठे, लेकिन हाँ, आज गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, मतलब शिव मंदिर बुलाया था, और वहाँ पे मुझे एक साथ काफ़ी सारे गुलाब के फूल दिखे संगत जी। शिव जी पे, माता रानी पे, सब पे चढ़, सब माता रानी का सबका स्वरूप एक ही साथ रखा हुआ था संगत जी, और मुझे बहुत सारे गुलाबों के फूल में गुरुजी ने दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं आपको एक सत्संग बताना चाहती हूँ संगत जी। मैं सत्संग सुन रही थी शाम में, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे थे जो नेगेटिव थे, मतलब गुरु वो थे कि वो सब सुन के मुझे कष्ट कटवाने हैं अपने। और संगत जी कल चंद्र ग्रहण है, और प्लस पूर्णिमा सी की भी है, और प्लस पितृ संगत जी कल हमारे संगत जी मुझे एकदम से नाम भूल रहा है, मैं पितृपक्ष संगत जी, हाँ संगत जी मुझ कल पितृपक्ष भी चालू हो रहे हैं, कल तीनों चीज़ें संगत जी। और गुरुजी ने ऐसे दिनों में तो आपको पता ही है कि इस लेवल का ब्लैक मैजिक होता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया शाम में, इस सत्संग सुनाने लगे कल से रिलेटेड, घटनाओं से रिलेटेड संगत जी, और आज की भी कुछ घटनाओं से रिलेटेड गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाने लगे, कष्ट आने वाला है ऐसा वैसा संगत जी। वो सारे सत्संग मैंने सेव कर लिए, मैंने कहा चलो मैं एक एक करके सुनती हूँ। संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, उसके नीचे एक सत्संग मुझे शो हो रहा था, तो संगत जी वो सत्संग मुझे शो हो रहा था, तो मैंने उस सत्संग को देखा, तो उसमें क्या लिखा था संगत जी कि कुड़िए आज शनिवार के दिन तू अपने अभी तक मंदिर नहीं गई, मैंने तुझे 5 शनिवार को कोई काम सौंपा था, तू भूल गई है, और तू जल्द से जल्द 10 बजे से पहले मंदिर जा, और जो मैंने तुझे उपाय करने को बोला था वो जाके कर, देर मत कर, क्योंकि कल तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आएगा, तेरे पति पे, तेरे परिवार पे, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल, मुझ पे, मेरे मम्मी पापा पे, मतलब जो मेरे मायके में उन पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जिससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो संगत जी मुझे तुरंत क्लिक हुआ, मैंने कहा गुरुजी मुझे जाना तो है ही, पर गुरुजी कहते नहीं अभी का अभी जा। संगत जी मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आप जल्दी से जल्दी आओ। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे कोई भी नहीं था, तो उन्होंने बोला मैं कैसे छोड़ के, मैंने कहा तो वो जो हाँ लड़के जो काम करते उनके सारे वो छोड़ के आए संगत जी। जो मेरे हस्बैंड का कज़न ब्रदर है ना, चाची सास का बेटा, तो उन्होंने उसको बुलाया, वो आ नहीं रहा था संगत जी, वो कह रहा था हाँ मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। संगत जी वो नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था संगत जी, क्योंकि मेरी चाची सास का बेटा और मेरी सास आज ही तो मॉर्निंग में गए थे ब्लैक मैजिक करने के लिए, कल के लिए वो ब्लैक मैजिक का इंतज़ाम करके आए संगत जी, और यहाँ भी वो कल करेंगे, और इंतज़ाम भी अपना करके आए हैं, और आज से करना चालू कर दिया उन लोगों ने ब्लैक मैजिक संगत जी। तो उस जानता था कि हम लोग कहीं जाते हैं मंदिर का, कहीं हम लोग जाते हैं जिससे इन लोगों का ब्लैक मैजिक का तोड़, मतलब इन लोग के ब्लैक मैजिक किया हुआ कट जाता है, तो वो ये जानता है, तो वो आ नहीं रहा था ताकि हम लोग मंदिर जा ना पाए। तो मैंने हस्बैंड अंकल से बोला वो तो चाहते ही हम लोग ना जाए, पर आप आओ, आप गुरु जी के सहारे अपनी दुकान को छोड़ो संगत जी। तो वहाँ जो लड़के काम करते वो बैठ गए संगत जी, तो तब तक हम लोग जल्दी से गए मंदिर संगत जी। फिर गुरु जी की कृपा से हम लोग जल्दी पहुँचे मंदिर, तो गुरु जी ने मुझे वहाँ पर शिवलिंग के आगे 5 दिए जलाने को बोले थे संगत जी, तो मैंने
वो गुरुजी का कृपा से 5 दिए प्रज्वलित करे शिवलिंग के सामने। और संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करके बोला कि आज शनिवार का दिन है, माँ काली को श्रृंगार का सामान चढ़ा। तो मैंने माँ काली को संगत जी सिंदूर भेंट किया, चूड़ी भेंट की। माँ पार्वती का भी मूर्ति थी संगत जी वहाँ पे, शिव पार्वती एक साथ है, तो मैंने माँ पार्वती को भी चूड़ी सिंदूर भेंट किया संगत जी, चुनरी भेंट की। और वहाँ पे माँ दुर्गा भी थी संगत जी, तो मैंने उन्हें भी चूड़ी सिंदूर भेंट किया संगत जी। अच्छे से दर्शन किए माता रानियों के, बहुत आशीर्वाद लिए, सुहागन का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छे दर्शन किए। और दासे की प्रभु बस हम दोनों का जोड़ा बनाए रखना, जो भी हम लोगों को अलग करना चाहते उन्हें कामयाब मत होने देना, कोई भी तंत्र काम मत करने देना। आपके कहने पे मैं आ गई हूँ आपके पास, कृपा करके आप अपनी कृपा दृष्टि बनाना, किसी बुरी चीज़ों को बुरे लोगों को जीतने मत देना, क्योंकि कल पूरा प्लान बन गया संगत जी हम लोग को अलग करने का। इसलिए गुरुजी ने आज फटाफट मुझे भेजा, और मेरे माँ बाप को भी कष्ट पहुँचाने का पूरा प्लान है, मुझ पर मारण क्रिया का भी है, सारा पूरा प्लान ये लोग करके आए संगत जी आज मॉर्निंग में। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे फटाफट भेजा संगत जी, मैंने सारे उपाय किए। और फिर संगत जी उसके बाद मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ घर आ गई संगत जी। और साथ ही में गुरुजी ने कहा था कि रास्ते में अपने हस्बैंड अंकल के हाथों काले कुत्ते को रोटी ज़रूर खिला देना। तो संगत जी वो भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल के हाथों खिलवा दिया था। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। और संगत जी मैं इन सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सही है। और संगत जी पता है, जब तक मेरे हस्बैंड अंकल घर नहीं आ रहे थे ना, तब तक मैंने वो सत्संग सुना, जो शीर्षक आया था, मतलब जो कैप्शन आया था कि आज मुझे जाना ही जाना है, उसके अंदर का सत्संग मैंने सुना संगत जी। उस अंदर के सत्संग में वो चीज़ें थी, वो घटनाएं थी जो कल घटने वाली थी संगत जी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी संगत जी, सुन के रूह कांप जाए। और संगत जी उस सत्संग में अंकल जी बता रहे थे कैसे उनको मारपीट करने लग जाते थे, गुस्सा आती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो गुरुजी ने कैसे उन्हें शांत किया संगत जी उस सत्संग के अंदर। तो संगत जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए ना मंदिर ले जाने के लिए, तो वो बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा क्या हो, मतलब बात बात तो छिड़ रहे थे, वो कह रहे थे मैं काट डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ सबको वो कर दूंगा। मतलब मैं कहा इनको हो क्या गया है। मैं समझ गई कि इन लोग की क्रिया काम कर रही है संगत जी, मैं समझ गई संगत जी। मैं बात कर रही हूँ, मेरे पेट में अजीब सी ऐठन हो रही है, मुझे नहीं पता कि कौन सी नेगेटिविटी मुझे सत्संग शेयर करने से रोक रही है इस वक्त। अभी संगत जी मैं सत्संग शेयर करी थी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से मुझे पेट में दर्द होने लग गई है संगत जी। तो संगत जी फिर फटाफट संगत जी फिर संगत जी मैंने कहा चुप होने में भलाई है, अभी अपने हस्बैंड अंकल से बहस नहीं करना है, अभी तो नेगेटिविटी चाहती है कि हम लोग ना जा पाएँ। तो मैंने चुपचाप मैं शांत रही, हम लोग चले गए दर्शन करके आए संगत जी। जब से दर्शन करके आई हूँ तब से हस्बैंड अंकल ने मुझे घर छोड़ा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल है संगत जी। जिस हिसाब से उस वक्त बहुत गुस्सा आ रही थी, वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि वो पागलपन की हरकतें कर दें, वो ऐसी कोई गलती कर दें कि ये लोग मेरे हस्बैंड अंकल को फंसा सके। तो संगत जी इसीलिए ही गुरुजी ने फटाफट मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे साथ में आज भेजा, मंदिर उपाय कराया, 5 दिए का उपाय, मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड अंकल, मुझे, हम सबको विश किया संगत जी। और तब भी गुरुजी ने अभी जैसे मैं घर आई ना, तो संगत जी सारा उपाय करके जब मैं घर आ गई ना, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि सब चंगा कर देता, बस तू शुक्राना करी जा। मतलब ये सारे उपाय को गुरुजी ने स्वीकार किया, और गुरुजी का फटाक से मैसेज आ गया, सब चंगा कर देता, बस तू शुक्राना करी जा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इसके कुछ देर के बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया कि कुड़िए कल बहुत बड़ा नुकसान होने का संकेत दिख रहा है, पुत्र अभी शुक्राना करके टाल। तो संगत जी अब तो रात तो आज निकल जाएगी संगत जी, रात का तो कष्ट गुरुजी ने काट दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल के बीच कुछ गलत हो सकता था, शायद हम लोग की फाइट हो सकती थी, शायद कुछ भी ऐसी क्रिया गलत हो सकती थी, तो वो तो गुरुजी ने काट दिया। अब कल सुबह जो कष्ट दिख रहा है उसके लिए गुरुजी शुक्राना करा दे रहे, उसके लिए भी गुरुजी ने मंदिर, उसके लिए भी भेजा था आज मंदिर। आज के लिए तो भेजे थे संगत जी, कल की घटना के लिए भी भेजा था, लेकिन कल मॉर्निंग में कोई संकट जरूर गुरुजी को दिख रहा है, तो गुरुजी ने उसके लिए भी मुझसे सत्संग अभी करवा ले रहे हैं। तो अनंतम अनंतम कितना ख्याल रखते हो गुरुजी महाराज, अब कितना प्रोटेक्ट करते हो, कितनी रक्षा करते हो, मतलब हर पल अपने संगत को अपने होने का एहसास दिलाते हो कि तुम चिंता मत करो, बुरा इंसान जितने जाल फैलाएगा मैं तुम लोगों को नहीं हारने दूंगा, जीतोगे तो तुम ही लोग। संगत जी सोचिए, कोई हमारे ये फंसाने का जाल फैला रहा था, और गुरुजी महाराज ने पहले ही उस जाल को काटने के लिए उपाय बताया कि जा जल्दी बेटा तू मंदिर भाग, तो ये उपाय कर और जाल को काट। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज ब्लेसिंग देने का शुक्राना, माँ बनने का आशीर्वाद देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। अब ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, अपना साथ कभी भी मत छोड़ना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी बस मेरा यही था शुक्राना सत्संग। और गुरु जी से मेरी अरदास है, गुरु जी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ ऐसे देते रहना, हर मुसीबत से हम लोगों को ऐसे निकालते रखना और दुश्मनों को उनके इरादों में कभी ना कामयाब होने देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे चरणों में शुक्राना समर्पित है गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना आप स्वीकार करना, कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना गुरु जी। अब संगत जी मैं शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, मंत्र जाप से चालू कर रही हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं मंदिर गई थी, गुरु जी के बड़े मंदिर। उसके बाद गुरु जी ने मुझे बताया, बेटी तेरे घर में जो भी संकट है ख़त्म हो गया सब, काली क्रियाएँ भी ख़त्म हो गई, तेरे कष्ट भी, बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई, तेरे ऊपर जो काली क्रियाएँ कर रही है वो सब ख़त्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं अब तेरे ऊपर जो भी संकट आया सब ख़त्म हो गया। हाँ गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरा बहुत बहुत कष्ट हटाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब बता रहे हैं तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, तेरे घर पैसे आएंगे, पैसे की वर्षा होगी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज सुबह सत्संग में मेरे को सब कुछ बताया, तेरे घर पे बहुत बहुत परेशानी थी, सब ख़त्म हो गई। अब इसको गुरु जी फिर सवेरे बता रहे थे सत्संग में, तेरे घर गणपति बाबा गुरु जी आएंगे, आ रहे हैं, तेरे ऊपर जो भी मेरे पितर को बांध रखा है किसी ने, कहते हैं हम उसके खुलवाने आए हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हम तो जानते नहीं गुरु जी, आपको ही पता है क्या है क्या नहीं है, इसलिए गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब कह रहे हैं कल चंद्र ग्रहण है, ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। गुरु जी अब क्या बता रहे हैं, बहुत भारी संकट है, शाम को सत्संग सुना उसमें, बहुत भारी संकट है तेरे ऊपर, यमराज खड़ा है तेरे परिवार पे, कितना बड़ा संकट है, उसको कटवा सुन। तेरी आंखों की ब्लेसिंग भी है, वो भी सुन आंखों के लिए गुरु जी, उसका भी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी कुछ नहीं जानते गुरु जी, उनको सत्संग करना भी नहीं आता गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी, इसको कोटि कोटि अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने ध्यान रहा उतना सुना दिया, मेरे को आगे पता नहीं गुरु जी ने बहुत कुछ बताया पर मेरा ध्यान नहीं है गुरु संगत जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे टॉप्स भी ढूंढवाए थे, वो भी मेरे 5 साल से घर से मिल नहीं रहे थे, अब गुरु जी ने उस वो भी मिलवाया, उसका भी शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप हमारे गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, सबका संकट भी काटते हैं, सबके चीज़ें भी ढूंढवा देते हैं। 5 साल बाद मेरी जो टॉप्स मिले हैं गुरु जी के ढूंढवाए हैं, उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी
जितना भी गुरु जी का शुक्राना करो उतना कम है। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वामी आंटी मेरे से सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भी गलती हो जाए क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। स्वामी आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं मेरा संकट। अभी बीच में भी मेरे पे संकट आ गया था, फिर गुरु जी ने अपने ऊपर लिया। मेरी पोती पे भी संकट है, वो भी अपने ऊपर लिया बीमारी का। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे का कह रहे हैं उसको भी ब्लेसिंग दी है, तेरे बेटा भी लाखों में खेलेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आप तो इतने अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरु जी। मेरे ऊपर जो भी संकट आया वो भी लिया, सबके ऊपर है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है, क्या करें। पति के ऊपर भी सब संकट मेरे काट दिए गुरु जी आपने, उसके लाख लाख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं सत्संगी राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वो स्वामी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, जैसा भी है वैसा मैंने कहा कर देना गुरु जी। संगत जी आंटी मुझे सत्संग करना आता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ अपने गुरु पाक की ब्लेसिंग्स शेयर कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी का शुक्राना भी कर रही हूँ और गुरु जी से एक छोटी सी अरदास भी कर रही हूँ संगत जी। प्लेटफॉर्म प्लेट जो सॉरी संगत जी, कुछ गलती से गलत बोल जाते मुझे माफ़ करना। हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करते हैं वो आंटी अंकल कहते हैं कि अपनी अरदास को शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत जी अरदास जो है ना संगत जी, जब इंसान को प्रॉब्लम हो तो गुरु जी समझ जाते हैं कि क्या अरदास करनी चाहिए या नहीं। संगत जी ये अरदास है संगत जी, मैं गुरु जी के नाते अपने बेटे के लिए कर रही हूँ संगत जी। संगत जी कलेश तो हमारे घर में काफ़ी टाइम से था संगत जी, वो क्यों है ये गुरु जी जानते हैं। क्योंकि संगत जी हमारे अपने ही कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जो यूँ कहिए कि घर के ही हैं, जिनकी वजह से संगत जी घर का माहौल काफ़ी ख़राब है। और संगत जी गुरु जी ने बहुत मेहर की थी 2 ढाई 3 महीनों से, फिर भी ठीक चल रहा था संगत जी, अच्छा चल रहा था। गुरु जी ने बहुत मेहर की हुई थी, लेकिन संगत जी कल से संगत जी जो गुरु जी का बड़ा बेटा है उसने अचानक से उसके सिर पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया। जिन बातों के लिए मुझे पहले फोर्स कर रहा था, फिर से संगत जी कल उसको वही पुराना रूप देखने को मिला। मैं बाबा से ये अरदास करती हूँ, बाबा प्लीज़ उसके दिमाग को ठंडा करना गुरु जी महाराज। आगे ही संगत जी आजकल का माहौल आप सभी संगत जी जानते हैं कि ठीक नहीं है, तो गुरु माँ प्लीज़ आपसे अरदास करती हूँ कि उसके दिमाग को ठंडा रखिए, उसके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कीजिए बाबा। संगत जी प्लीज़ गुरु जी अपनी इस नादान बेटी के अरदास को जरूर स्वीकार करना बाबा। वो बहुत बेचैन रहता है गुरु जी महाराज, उसको संगत जी गुरु जी से अरदास करती हूँ प्लीज़ बाबा उसको शांति प्रदान करो दाता। उसके सर पे अपना मेहर भरा हाथ रखो, उसके दिल को सुकून दो, चैन दो उसको। संगत जी वो सेटिस्फाई नहीं होता, पता नहीं उसको क्या पड़ी है। हर वक्त वो बस कहता है यहाँ से पैसा आए, वहाँ से पैसा आए, पैसा उसको पता नहीं हर वक्त दिमाग बस हर वक्त पता नहीं ऐसे ही रहता है संगत जी। अगर उसके पास होता है तो भी उसको
तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होता संगत जी। गुरु जी प्लीज़ उस पे अपना मेहर भरा हाथ रखो, उसको शांति दो, उसकी आत्मा को जो उसमें बेचैनी है इतनी है, उसकी आत्मा को तृप्त कर दो बाबा, उसको नाम दान की शक्ति गुरु पा प्लीज़ उसको अपनी गुरु भक्ति, गुरबानी की दात बख्शो दाता, उस पे मेहर करो कि वो रोज गुरु घर जाए, गुरु पा प्लीज़, और वो पाठ करे दाता। मैं उसको रोज बोलती हूँ संगत जी कि वाणी में बहुत शक्ति होती है, वो हमें सब कुछ देती है, दिल का सुकून चैन जो हमें चाहिए होता है वो वाणी से हमें मिल जाता है। लेकिन संगत जी पता नहीं उसके कर्म या मेरे कर्म खराब हैं या उसके कर्म खराब हैं, उसको संगत जी चैन नहीं आ रहा, वो हर वक्त बेचैन रहता है। तो बाबा प्लीज़ आपसे ये अरदास है, प्लीज़ गुरु जी महाराज उसको नाम दान की दात बख्शो गुरु जी, उसको उसके दिमाग को ठंडा रखो बाबा, ताकि वो उसकी जो बेचैनी है वो कम हो जाए और वो अच्छे से गुरबानी करे, पाठ करे, सुने, कुछ भी करे ताकि उसको शांति मिल सके। बाबा प्लीज़ आपकी बेटी दोनों हाथ जोड़कर पैर पकड़कर नाक रगड़ कर आपसे अरदास करती है बाबा प्लीज़। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी महाराज आप उस बच्ची की अरदास को जरूर कबूल करेंगे। सो संगत जी शुक्राना तो हम सभी संगत जी का हर पल होता ही है, क्योंकि हमारे जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन संगत जी फिर भी कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है संगत जी, हम फिर घबरा से जाते हैं, डगमगा जाते हैं। लेकिन वो तो डगमगाना कुछ सेकंड या कुछ मिनट का ही होता है, लेकिन संगत जी फिर भी मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एकदम डिप्रेशन सा आ जाता है संगत जी। बाबा प्लीज़ मेहर कीजिएगा अपने बच्चे पर, मेहर कीजिएगा बाबा। संगत जी आज का सत्संग यहीं तक संगत जी, कल फिर आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी अपने गुरु पा का। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।